I'm perfectly okay. Yes, thank you so much, Hinal ma'am. Okay, yes, thank you for starting this recording as well. First and foremost, a very, very warm welcome. It's been a very chilly few days, hasn't it? It's been very cold and a lot of sickness and all that. So we acknowledge all that, and I hope all of you are keeping well wherever you are at home. And I'm glad, we are able to do this. To be honest, we had this is actually an initiative of our school's parent support group. We met once physically in school last month before all this peaked up. So, and at that time, we had mentioned that we're going to have a meeting here, and our parents were very supportive of wanting this to happen, of having our guest join us and speak to us. And so, although we were initially intending to have this in the school auditorium, this is our auditorium right now at home, and I'm so glad you all are here. And the beauty of this is we have our students here, we have our parents as well, and we have our teachers as well who are able to join in. A lot of things going on in school, audits going on, and teachers have made it a point to come here. Hinal ma'am, I just wanted to set the scene for you because as you are aware, we are an inclusive school and we are practicing inclusion right from all quarters. So it's very heartening to see our teachers also be here to be able to understand how best teachers also can support our children with learning difficulties in the school. Parents are here to understand what they can do at home, and students are also here to understand for themselves as to what is this difficulty, how I can manage it best. And we have our counseling team here. If I can request my team actually to keep your videos on, that will be really helpful. I have Radhika, I have Natasha, Rahima, Dhwani, and Nikita. Have I missed anybody? Okay. So we are here in our team, and so this is our counseling center, and this is we are here to have this session with Dr. Hinal Shah, who's going to speak to us about about learning difficulties, learning disabilities, about how to process the certification, understanding why it is necessary, why do we need to do this. Learning disability is not visible like many other disabilities. Is it really necessary? Does my child really have this? And what to do, how we can best help, what are the psychological effects if it goes undiagnosed. And as part of her, interaction with us, she will definitely share her experience. But before that, you need to know why, who actually is Dr. Hinal Shah. She doesn't need much introduction, really. But if I can request our host to kindly put up that slide. Yeah, thank you very much. So Dr. Hinal Shah is actually, she's a psychiatrist. She's a professor of Department of Psychiatry at Nair Hospital in Mumbai. And most of you would have probably seen her signatures as well on certifications, and may have also met her as part of your process with your child. She's obtained her master's in psychiatry from KM Hospital and has had experience at the Royal Hospital for Sick Children at Glasgow. And she's keenly interested in the field of child and adolescent psychiatry and is presented and published in this field. She's obtained a master's in health professional education from University of Maastricht and is global faculty in medical education and a co-director of FIMA Institute at GSMC Mumbai. She has received the Bai Savitri Bai Phule Award by the Mayor of Mumbai for excellence in work and contribution to health services of MCGM, and International Fellowship for Medical Education, awarded by Foundation for Advancement in International Medical Education Research, Philadelphia, St. Vincent Thomas Power Foundation Fund for Development of a Skill-Based Fellowship Training Program in Child and Adolescent Psychiatry in Mumbai. This is just a few things to her name. And we have had, and I have also had that, an opportunity, to interact with Dr. Hinal Shah. And she's a very grounded professional in her field and very difficult to get her dates. So I'm eternally grateful, Hinal ma'am, on behalf of the Counseling Center and from Bansangha's educational institution here, that you have taken the time out to come and interact with us.
We have our parents here and some students who are already certified and some who are in the process of certification. So I'm very, very grateful. A very warm welcome once again to you, Dr. Hinal Shah. Yeah, there you go. That's a bouquet from us to you. That's a bouquet. Of course, it would have been better if we could have met, but that day also will come. So thank you so much here. Over to you, Hinal ma'am. And before ma'am starts, I have a request. You all keep yourself on mute. If you have any questions, please put it in the chat box. And Ash, we will definitely answer, take up those questions at the end of Hinal ma'am's session. And co-hosts, I request you to just pick up any questions so that we don't miss out on any. Okay. So Hinal ma'am, over to you. All right, thank you. First of all, I must thank Pratima ma'am for inviting me here. And we had planned this day. We didn't know whether it be online or offline, but we said we'll keep the day and timing fixed. And then depending on how the virus is, we will be here. So I'm in Nair Hospital right now and you all are in your homes and schools, but we are yet meeting thanks to technology. So wonderful. ये पूछना था कौन सी भाषा में बोलूं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी? हाँ, जैसे बताया था ना, हाँ नहीं, प्रतिमा मैम ने अभी बताया था, बहुत ठंड का मौसम था तो कल मैंने घर पे भेल बनाई। तो भेल में क्या होता है, मैं एक कजन आई थी, वो अमेरिका से आई थी, तो भेल क्या होता है कि उसमें तो थोड़ी सी लाल चटनी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालो और थोड़ी सी ब्राउन चटनी और मस्त कोरिएंडर डाल दो ऊपर, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो वैसे ही अपनी भाषा होगी आज की, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा मराठी, बीच बीच में गुजराती भी आ जाएगा। आई एम अ गुजराती, दैट्स व्हाई। सो विथ ऑल दीज लैंग्वेजेस वी विल कंटिन्यू। जब भी कुछ समझना है तो यू कैन ऑलवेज पुट अप योर हैंड एंड आई विल स्टॉप एंड यू कैन इंटरप्ट मी इफ रिक्वायर्ड। बात क्या करें ये मुझे नहीं समझता, बट एनीवे आई प्रिपेयर अ स्लाइड, इफ द होस्ट अलाउज मी आई विल शेयर द स्लाइड्स। Yes, please, Natasha. और थोड़ा सा हल्का सा मेरा आवाज बैठ गया है तो शायद थोड़ी आवाज में तकलीफ आ जाए। Yes, ma'am. You've been given the sharing rights. Thank you. Thank you. तो पहले ही शुरू करते हैं थोड़ी सी कहानियों से। तो नवनीत, ये जो एक बच्चा था हमारे पास आया था, उसकी माँ लेके आई थी कि भाई हम तो एक्चुअली वो आई थी ऑर्थोपेडिक को दिखाने, हड्डी के डॉक्टर को और चमड़ी के डॉक्टर को। तो उसने घुटने ना काले हो गए और बहुत दर्द करते हैं, तो उसके लिए आई थी उधर। वो लोग ने हमारे पास भेज दिया। तो मालूम है कि उसके घुटने काले और इतने दर्द क्यों कर रहे हैं? क्लास के 8 घंटे में 6 घंटे तो वो उधर घुटने पे बैठा था क्लास के बाहर। तो वो SM शेट्टी जैसी स्कूल नहीं थी कि जहाँ ऐसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हाफ द टाइम ही वाज आउट ऑफ द क्लास। माँ उसको फिर उधर ऑर्थोपेडिक ने हमारे पास भेजा। तो माँ ने बताया कि ये मेरा नवनीत है ना, बहुत ही चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं है, एक जगह बैठता है ना, इधर से उधर कूदते रहता है, क्लास में भी बैठता नहीं, आगे पीछे जाता है, बुक्स गिरा देता है, टीचर चालू करती है तब तक तो उसकी बुक्स ही नहीं आती है, वो टीचर डिक्टेट करती है तो तब तक पेन नहीं निकली हुई है, फिर वो स्लो लिखता है, बराबर नहीं लिखता है, इतना सारा कमोशन कर देता है ना कि टीचर थक जाते, फिर उसको घर से उसको रूम से बाहर निकाल देते। और वो बता रही थी माँ, बेचारी बहुत परेशान थी कि कैसे वैसे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दुआ है कि गवर्नमेंट ने ऐसे रूल निकाले हैं कि पास कर दो तो वो पास होते जा रहा है, मगर वो पढ़ नहीं पा रहा है। अगर यू गिव हिम अ बुक, ही कैन नॉट रीड. You give him writing, he cannot do any essay writing. If he has to write answers, he writes very short answers and full of spelling and grammar mistakes. So I am very tired.
आई एम सो टायर्ड। मैंने उसको डांटा, समझाया, उसकी बहन के बारे में बताया वो अच्छी है, उसके दादाजी ने उसको समझाया, उसको सोटी से मारा, फिर भी वो बदल नहीं रहा। तब मैं तो थक गई। ये थे नवनीत की कहानी। छाया हमारे पास आई थी क्योंकि ना उसने खाना पीना उसका कम हो गया था, वजन कम हो गया था, शी यूज्ड टू क्राई, उसको उत्साह, आनंद, उमंग कुछ भी नहीं था, पहले जैसे खुश नहीं थी वो। पहले ना छाया थी तो वो इतना हंसती थी और खिलखिला के हंसती थी कि सबको सुनाई देता कि हाँ छाया है। अब वो शांत रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कम बात करती है, और ध्यान से तो उसका मन ही उठ गया है। तो ये थी छाया। उसके माँ बाप कहते हैं कि बचपन में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो अच्छी थी, फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद उसका पढ़ाई में मिस्टेक्स होने लगे, लिखने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, फिर आस्ते आस्ते उसके ग्रेड्स कम होने लगे और इसका इंटरेस्ट कम होने लगा, और अभी ये एग्जाम में तो बहुत ही बुरे मार्क्स आए हैं और उसके बाद ऐसे ये शांत शांत हो गई है। ये छाया की कहानी थी। पर्सिस, उसकी माँ को और एक बड़ा बेटा था, और जब पर्सिस थर्ड में आया तो माँ को लगा इसको तो कोई तकलीफ ही है, ये लिख नहीं पा रहा है, राइमिंग बराबर नहीं कर रहा है, लेफ्ट राइट में मिस्टेक कर रहा है, तो इसको तो कोई दिक्कत है। इसके लिए वो जल्दी से आ गए हमारे पास कि सब में, मगर एक तो प्रॉब्लम थी कि पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, और वो बेचारे बच्चों को भी नहीं मालूम हो रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ये तीनों बच्चों में एक चीज कॉमन थी, तीनों को क्या था, लर्निंग डिसेबिलिटी था। Whether it is Navneet, whether it is Chaya or it's Persis, all of them had a learning disability. So what is SLD? Yeah, what is dyslexia? Or what is specific learning disability? Or what is specific learning disorder? All the different names that are used for it. देखो हमारे पास, सबके पास ये स्किल आती है रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स करने की, और ये कब आती है, जब हम स्कूल जाते हैं, हमको ट्रेनिंग दिया जाता है और हम ये सीखते हैं। मगर जब ट्रेनिंग देते हैं इसके बावजूद भी बच्चे सीखते नहीं हैं। बुद्धि के होशियार है, मंद बुद्धि नहीं है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, हाथ बराबर है, बुद्धि बराबर है, स्कूल में भी टीचर अच्छे हैं, अच्छा सिखाते हैं, फिर भी उनको दिक्कत होती है या एकेडमिक स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, मैथ सीखना, इसको हम एसएलडी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। अभी क्या होता है ना, ब्रेन में, हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड होता है, कैसे चलता है, जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन किया ना, तो आपने पावर बटन दबाया तो एक स्पेसिफिक काम होता है, फिर जब आपने वॉल्यूम लगाया तो वो वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। मगर एसएलडी बच्चे रहते हैं तो उनके दिमाग में अलग सा थोड़ा कनेक्शन होता है। अगर पावर कनेक्ट किया तो ऐसा नहीं है कि वो ऑन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑन किया तो शायद लाइट हो जाएगी। तो थोड़ा ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल केमिकल न्यूरोकेमिकल कनेक्शंस है, उसमें से थोड़ा सा हेवायर हो गया है। बुद्धि अच्छी है, दिखता है, सुनाई देता है, मगर ये थोड़े कनेक्शंस के प्रॉब्लम के कारण से ये थोड़े एकेडमिक डिफिकल्टीज हो जाते हैं। तो उनका जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो कम मार्क्स आते हैं, फेल भी हो सकते हैं, मगर एक्चुअली उनकी जो पोटेंशियल है, वो जो कर सकते हैं, वो तो एक बहुत ही बढ़िया है, मगर जो उसकी पोटेंशियल है और जो होता है क्लास में, उसमें बहुत अंतर है। जो कैपेसिटी है और जो एक्चुअली होता है उसमें बहुत ही अंतर रहता है, और ये अंतर का कारण होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तीन वेरी इंपॉर्टेंट वन है। डिसलेक्सिया विच इज रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में दिक्कत, राइटिंग में तकलीफ तो उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया,
मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी होती है तो उसको डिसकैलकुलिया बताते हैं, और ये जब करने जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। तो रीडिंग में क्या होता है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में मिस्टेक करते हैं, बोलना है पढ़ना है एग्जीबिशन पढ़ते हैं और कुछ डिस्टिंक्ट का एक्सटिंक्ट, और ऐसे नहीं कि इंग्लिश में ही होता है, गुजराती, हिंदी, मराठी, कोई भी भाषा में होता है। जैसे कि सबके माथा आई नो सबके ब्रेन पे वर्ड्स लिखा है, मगर जो डिसलेक्सिया है वो उसको पढ़ता है WROBS, तो ये वर्ड्स भी थोड़े मिक्स हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, बी का डी हो जाता है, तो ऐसे दिक्कत होती है डिसलेक्सिया में। उनको वर्ड्स रिकग्नाइज में, लेटर्स रिकग्नाइज करने में दिक्कत होती है, उनका जो रीडिंग होता है ना वो बहुत ही स्लो एंड एफर्टफुल वर्ड, क्योंकि छोटा छोटा ब्रेक करके रीड करते हैं तो उनका रीडिंग बहुत ही स्लो और एफर्टफुल हो जाता है। वो पंक्चुएशन, ग्रामर, ये सब बराबर नहीं फॉलो करते हैं, पढ़ते पढ़ते लाइन मिस हो जाती है, वर्ड्स चुप जाते हैं, और जब पढ़ते हैं कभी कभी उसका मीनिंग समझते नहीं है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज में आंसर क्या लिखना उनको समझ नहीं आता है, क्योंकि वो बराबर वो पैराग्राफ समझ नहीं पाते, डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम उसको कहानी बताएं और बोले कि बताइए, तो वो जो क्रोनोलॉजी होती है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो आना चाहिए उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। So what will the child read? The word is animal and the child may read it as aminal. Dad may be read as bad. Plane may be read as plan. The E is gone. Automobile can be guesswork and they can read it as automatic. Once there was a king, and they will guess and say once upon a time there was a king. So they may add words, remove words, add alphabets, remove alphabets, guess alphabets, change alphabets. So these are the kind of errors that will happen in reading. They have to read this. So difficult, no? हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, वर्ड फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, मार्जिन बराबर नहीं है, स्पेसिंग बराबर नहीं है, और अगर पढ़ने जाए तो इफ आई हैड अ मैजिक, स्पेलिंग मिस्टेक है मैजिक में, कारपेट में स्पेलिंग मिस्टेक है, आई वुड गो टू पढ़ने में ही आती है, और एक्चुअली क्या है मैं बताऊं, इफ आई हैड अ मैजिक कारपेट आई वुड गो टू हवाई, the Philippines and Bahamas. There, I would go scuba diving, snorkeling and swimming. I would also visit tourist attractions. तो सोच तो बहुत अच्छी है. He's got the idea, but he could not put it on paper. So this is dysgraphia. Difficulty in expressing ideas. So there'll be spelling errors because of poor phonics. What is phonics? B says, B says B, C says K. ये जो साउंड और अल्फाबेट का मैच होता है उसमें डिफिकल्टी हो जाती है. विजुअल मेमोरी, लेटर फॉर्मेशन में डिफिकल्टी होता है. स्पेसिंग, पेन या पेंसिल जो पकड़ते हैं उसका ग्रिप, उसका एंगल, उसका प्रेशर, ये सब अलग हो जाता है. वोकैबुलरी लिमिटेड होती है, ग्रामर मिस्टेक्स, मिररिंग होता है, इन्वर्जन होता है, वाउल्स में कंफ्यूजन होता है, ए के जगह ओ, यू के जगह ई, स्पेलिंग एकदम ही विचित्र हो जाते हैं. और अपनी जो आइडिया है अगर आप उसको पूछे तो वो बराबर बोलता है, मगर उसको लिखने को बताए तो गड़बड़ हो जाती है. वो वर्ड था गॉड, उसने लिखा गॉड, बिफोर था उसमें लिखा बी फॉर, ब्यूटीफुल का ब्यूफुल लगा दिया. तो ऐसे सारे मिस्टेक्स लिखने में आते हैं. फिर मिस्टेक्स आती है राइट और लेफ्ट में, कंफ्यूजन होता है कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट. घड़ी देखने में टाइम देखने में मिस्टेक हो जाता है, कैनॉट फिगर आउट हाउ टू रीड अ टाइम, दैट्स अ वेरी ऑफन वो लोग डिजिटल वॉच लेते हैं. डिसकैलकुलिया में वर्ड प्रॉब्लम्स में दे कैन नॉट मैनेज. स्मॉल एंड बिग उधर से ही शुरू होता है. व्हाट इज स्मॉल, व्हाट इज बिग, व्हाट आर द लॉज और द how do you add, how do you minus, how do you carry forward, how do you multiply, tables, all these are difficult things.
And then comes word problems. 5 people do the work in 6 days. So 6 people do it in how many days? बाउंसर, एकदम बाउंसर. इसका मतलब क्या, आगे क्या करना समझ नहीं आता है. और जब वो गिनने भी जाते हैं तो कभी कभी ना मन में नहीं गिन पाते हैं, तो डॉट्स बना के गिनते हैं, उंगली पे गिनते हैं, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती है. माइनस के बदले डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बदले माइनस करेंगे, रिवर्सल हो जाएगा नंबर्स का भी. और ये भी सब भाषा में होता है. और कभी कभी बोलने में भी दिक्कत हो जाती है कि बच्चे लोग को लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है. अभी तक तो हमने खाली बताया कि उनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे मैथ्स, रीडिंग, राइटिंग का प्रॉब्लम है. Very often children have added problems. One of the added problem is a language barrier. क्या है कि बच्चों को इंग्लिश बराबर नहीं आती और इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, तो एक तो डिसलेक्सिया है और दूसरा लैंग्वेज बैरियर हो जाता है. तो दो प्रॉब्लम साथ में जा जाती है. अगर खाली लैंग्वेज बैरियर होता तो उनको लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है, मगर जो मिस्टेक्स होती थी वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया से अलग होती है. और यहाँ तो लैंग्वेज अगर उनको एनरिच करे, उनको और लैंग्वेज सिखाए हैं और प्रैक्टिस करे तो वो सीख पाते हैं. मगर लर्निंग डिसेबिलिटी में वैसे नहीं हो सकता है. ज्यादा पढ़ाने से वो कैचअप नहीं कर पाएंगे. और अगर दोनों होता है तो प्रॉब्लम्स और ही बढ़ जाती है. तो वेरी ऑफन कहते हैं कि अगर एसएलडी हो तो अपनी मातृभाषा में सीखे तो अच्छा हो सकता है. मगर वो कब होगा, अगर जल्दी पता चले. अभी 6 में आप बदलने जाएंगे तो वो तो बहुत ही मुश्किल है कि अभी तक इंग्लिश में पढ़े, अभी अपनी मातृभाषा में पढ़ो, वो भी नहीं हो पाता है. ठीक है, मगर ये याद रखना है कि लैंग्वेज इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. अगर एसएलडी हो तो इसके लिए लैंग्वेज स्टिमुलेशन और इंटरवेंशन जरूरी है. बच्चे हैं, बच्चों के बहुत सारी तकलीफें होती है. वैसे ही जब एसएलडी होता है तो बहुत सारे और तकलीफ हो सकती है, जैसे कि मस्तिष्कखोर या शरारती और चंचल. हमने नवीन की बात की थी, उसको तो क्लास के बाहर ही रखते थे क्योंकि इतना चंचल था, एक जगह टिक नहीं सकता था. क्लास उधर, वो अपनी बातों में, वो तो खुद नहीं पढ़ता था, बाजू में बात करता था. उसका पेंसिल लो, उसका रबर लो, टीचर को कुछ पूछ रही है तो बीच में बात करो, अपनी चीज भूल जाना, आप ध्यान न दे पाना. बहुत ही ये सब चंचलता का कारण है ना, वो उसको है. उसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या चंचलता. ये याद रखिए, जब भी हमने एसएलडी में बताया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, हर बच्चे को हर नहीं होता है. किसी को डिसलेक्सिया होता है, किसी को डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया होता है, किसी को ओनली डिस्कैल्कुलिया होता है. और जो भी डिसलेक्सिया होता है, हर बच्चा एक नहीं होता है, हर में अलग 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 तरह की प्रेजेंटेशन होती है. वैसे ही ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है, उसमें ढेर सारे तकलीफ हो सकती है. कोई बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपना काम नहीं खत्म करते, उसको बुलाते तो वो सुनते ही नहीं, ऐसा लगता है. ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपनी चीज खो जाती है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. या कभी कभी वो बहुत ज्यादा चंचल रहते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं, इधर इधर घूमते रहते हैं. अगर कोई भी चीज हो जो ध्यान देके करनी है वो करते ही नहीं है, बहुत बात करते हैं, बीच में बोलते हैं. अपना टर्न तो उसके लिए तो ठहर ही नहीं सकते. अगर वो छुपा छुपी खेलते तो भी बीच में बोल देंगे कि देख वो उधर है. अपना डैन हो तब बोलना पड़ता है, मगर वो सब कर नहीं पाते हैं. तो इसके लिए बच्चों में भी ये सारी तकलीफें हो सकती है. शायद इनअटेंशन हो, शायद हाइपर एक्टिविटी हो, और देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो द चाइल्ड नॉट ओनली हैज डिफिकल्टी इन स्टडीज but may have difficulty in attention and many other things. Some children are very anxious, डरते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत उनको डर लगता है. क्या होगा, टीचर डांटेंगी, मम्मी को कुछ हो जाएगा, घर पे कुछ हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझसे मिस्टेक हो जाएगी. इसके कारण, उनके एंजाइटी के कारण स्टैमरिंग हो सकते हैं, रात को डरावने सपने आ सकते हैं, पेशाब हो सकता है, और बोलने में दिक्कत हो सकती है कि घर दूसरों के बड़े के सामने बोल ही नहीं पाते हैं. तो कभी कभी आंसर आता है फिर भी बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो डर के मारे हैं.
तो ये है एंजाइटी। जैसे कि हमने बात की थी छाया की, बोलना खाना पीना कम हो गया था, वो मायूस रहती थी, किसी से मिलजुल के नहीं रहती थी, उसकी उत्साह आनंद उमंग जो उसको सब पसंद था उसमें उसका इंटरेस्ट गया था, तो उसको हो गया था डिप्रेशन या निराशा की बीमारी। तो ये एक और चीज हो सकती है। कभी कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती है, मगर बच्चे गुस्से वाले हो सकते हैं, बच्चे डिफाइंड हो जाते हैं, तुम ये बताएंगे तो हम वो अलग ही करेंगे, हम तुम ये बताएंगे तो हम कभी नहीं करेंगे, झगड़ा करते हैं, सुनते नहीं है, दूसरों लोगों को तकलीफ देते हैं। साथ साथ बच्चों की कभी कभी सेल्फ एस्टीम मीन्स अपने बारे में जो हम सोचते हैं, हमारे बारे में हमारी जो सोच है वो कम हो जाती है। तो सेल्फ एस्टीम क्या होता है? हम सबको, टीचर्स पेरेंट्स, हम सबको हमारे बारे में कुछ सोच होती है, और हमारे बारे में ऐसी भी सोच होती है कि आइडियल पर्सन कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसी हूँ, मैं सोचती हूँ आइडियल यहाँ होना चाहिए और मैं यहाँ हूँ, तो उसमें जो अंतर रहता है वो अंतर ज्यादा हो तो हमारा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। अगर ऐसे ही लगता है कि मैं तो बेकार हूँ, और जो अच्छे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे माँ बाप होते हैं, अच्छे टीचर है, वो तो बहुत बढ़िया होते हैं। जो अंतर आ जाता है कि वो अच्छे क्या है और मैं क्या हूँ, अगर वो अंतर बहुत रहता है तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम या हमारे सबकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। एसएलडी में या डिसलेक्सिया में स्पेशली एकेडमिक सेल्फ एस्टीम बहुत कम रहता है, क्योंकि पढ़ाई में तो उनको बहुत ही दिक्कत होती है, मार्क्स कम आते हैं, सब हंसते हैं, तो फेल हो सकते हैं, माँ बाप गुस्सा करते हैं, टीचर गुस्सा करते हैं, तो उनकी एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत कम हो सकती है। कभी कभी उसके साथ उनकी, क्योंकि उनको डिप्रेशन है और अलग प्रॉब्लम्स भी है, तो उनकी ग्लोबल सेल्फ एस्टीम के उनके फिजिकल बारे में, सोशल बारे में भी कम हो सकती है। पर ज्यादातर एकेडमिक सेल्फ एस्टीम तो डेफिनेटली कम हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अच्छा नहीं होता है, लोग टोकते हैं, उनको लगता है कि मैं बुरा हूँ, कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, और साथ साथ तब मोटिवेशन भी कम हो जाती है। हम इसको कैसे पहचाने कि बच्चे की आत्मविश्वास कम है? जब वो कहते कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, नॉर्मली बच्चे यूजुअली कहते हैं हम ट्राई करेंगे, और जब बच्चे बोलने लगते नहीं ये मुझसे होगा नहीं, मैं ट्राई ही नहीं करूंगा, तो उनका कॉन्फिडेंस कम है। आपने पहले ना जू में हम जाते थे, तो वो बड़ा सा हाथी रहता था, और एक छोटे से खिल्ले को उसको बांध के रखते थे। तो हम सोचते थे कि इतना बड़ा हाथी, इतना छोटा खिल्ला, वो क्यों खिल्ला को उखेड़ के चला नहीं जाता? मालूम है ये क्यों होता है? कि बचपन से उसको बांध के रखा है, तब तो वो खिल्ला नहीं हटा सकता था क्योंकि वो छोटा था, तो उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वो खिल्ला नहीं हटा। वो बड़ा होता गया, मगर फिर उसकी कोशिश चली गई, उसने बोला कि ये खिल्ला हटता ही नहीं है, तो मैं कोशिश नहीं करूँगा। वो बड़ा हो गया, बहुत ताकत हो गए, मगर उसकी सोच नहीं बदली कि मेरी ताकत बढ़ गई है, मैं खिल्ला उखाड़ सकता हूँ। सोच वही रही कि वो जो खिल्ला है ना, वो जो मान के रखा है, मैं उसको उखाड़ नहीं सकता। तो उसको क्या हो गया है कि मेरे करने में कर ही नहीं पाता हूँ। ये एक लर्न हेल्पलेसनेस है कि मेरे करने की क्षमता ही नहीं है। वैसे ही बच्चों में अगर वो हर टाइम फेलियर फेस करते, हर टाइम डांट खाते, हर टाइम बोलते कि तुम बेकार हो, तुम्हारी दीदी अच्छी है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम बुद्धू हो, अगर ये जब सुनते ही रहते हैं तो वो अपने वैसे हाथी के जैसे हो जाते हैं, कोशिश करने की इच्छा ही चली जाती है, और इसे हम कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। और ये हम खास ख्याल रखना है कि बच्चे में न हो। फिर बच्चे सोचने लगते हैं ये क्यों हो रहा है, मेरी ही गलती है, मैं नहीं कर पाऊँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई समझते नहीं है, टीचर भी नहीं समझती, बहुत फास्ट जाती है, पेरेंट्स भी गुस्सा करते हैं, और फिर वो लोग सोचते रहते हैं बहुत सारे कारण है क्यों मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। मगर
अपने आप से अच्छे करने में और अपने आप को सुधारने में उनकी जो क्षमता चाहिए वो कम होती जाती रहती है। उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो कम हो जाती है। क्यों करूं, मुझसे होगा नहीं, करने का फायदा क्या है, मेरे में वो इतनी अभी नहीं है। Will I really be able to do it? Can I do it? Can I achieve anything? Should I dream? Should I plan for the future? Why should I? I cannot even do it. So why should I do it? तो वैसे वैसे उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है। घर स्कूल में क्या होता है, अच्छा नहीं करते हैं, अगर टीचर ने बता दिया प्लीज रीड अ पैराग्राफ, तो रीडिंग में मिस्टेक, सब हंसते हैं, सब उंगली उठाते हैं, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, कर नहीं पाते तो मोटिवेशन कम हो जाता है, थकान लगती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और ऐसे एक चक्र भी हो जाता है। फेलियर नहीं करने का, मोटिवेशन नहीं, सेल्फ एस्टीम नहीं, कोशिश नहीं, और फेलियर, तो एक चक्रव्यूह में बच्चे आ जाते हैं। तो हम इसको कैसे बंद करें, हाउ टू हेल्प? पहले तो हम एक बॉल देखते हैं ना, उसको हम नीचे डालते हैं तो वो तुरंत रबर बॉल ऊपर आता है। That is what we call as resilience, the ability to bounce back. We want our children to have the ability to bounce back, because life will have bouncers. Life will be such that you will go down. Life is such for everybody, not only us. It's for you, me, parents, all children. But we have to have the ability to bounce back. And we as parents, teachers, counselors, psychiatrists, mental health professionals have to help children to develop resilience. उनको ये क्षमता दो कि वो वापस उठ जाए और वापस सामना करें। उनकी जो क्षमता चाहिए फेस करने की दुनिया को, वो बढ़ानी चाहिए, और उसके लिए स्कूल और फैमिली की बहुत बड़ा हाथ है। Teachers should be supportive, give them a chance, accept them for who they are. Most important, पेरेंट्स और टीचर ना एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ उसको डिसलेक्सिया है, तो क्या हुआ, वो डिसलेक्सिक नहीं है, उसको एक डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, उसमें और सारे बहुत गुण है। लुक एट दैट। सो एक्सेप्ट द चाइल्ड फॉर व्हाट ही इज, गिव हिम चांसेस टू डू थिंग्स, सपोर्ट हिम, and that should come from both children. So all you have to support each other, parents have to support, and school and teachers have to support. And of course school counselors role is the cornerstone in this, in getting all of it together. What do we expect parents? We want parents to understand the child. They're the ones who will give the stimulation in the early years. They're the people who will fight for the rights of the children. They'll support the child while learning and help him in his strengths and his weaknesses also. The peers or the other children, they will form friendships. They will give him confidence. They will help him when he needs help, give him emotional support. And you remember that children compare with each other. So if you allow children to come and talk about different strengths besides academic strengths, then it will be very good. Just because मेरा A आया मैथ्स में, मैं सबसे स्मार्ट नहीं हूँ। स्मार्टनेस बहुत तरह का है। मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ, मैं स्वभाव से अच्छा हूँ। बहुत सारे गुण बच्चों में होते हैं। हर गुण को तुलना करनी चाहिए और हर गुण की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। For the teacher, acceptance, genuine, and empathy to understand what is the child going through. And अब जो भाषा और परिभाषा और डिसिप्लिन करते हैं वो कैसे करें without hurting the self-esteem of the child. We can say, हाँ आपने कोशिश की, ये बार अच्छा नहीं हुआ, next time you will be better. Great idea. Your spellings are not good, but let's try and help you there. No? So there are many ways of saying that things will be better. I've heard many parents say, हाँ हमारी स्कूल तो इंक्लूजन है ना, तो कैसे सारे बच्चे आ जाते हैं.
So we have to educate parents to understand inclusion is not only good for the children who have a disability, it is good for all the other children because they learn how to share, they learn how to give, they learn patience, and they learn so many other things from disabled children also. So there is learning for both and everybody in the system. So having a system that is inclusive is helpful for all children, parents, teachers, and community. Therefore, we should all be advocates and push for inclusive education. We must look after our children, and therefore, what are the protective factors required? Okay, इसका identification should be early. जितना जल्दी हम उसको जांच करें, as early we give help, उतना जल्दी brain change हो सकता है. जब हम रेमीडिएशन करते हैं, और रेमीडिएशन और ट्यूशन में अंतर है. ट्यूशन में है कि जो ही है पहले सिखाया है वो वापस सिखाते हैं. रेमीडिएशन में हम रूल सिखाते हैं, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वर्ड्स को कैसे ब्रेकअप करना है, किस तरह से लिखना है, ये सब रेमीडियल इंटरवेंशन में करते हैं. और जब ऐसा रेमीडियल इंटरवेंशन जितना जल्दी करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो पाथवेज है, हमने स्लाइड दिखाई थी ना, वो पाथवेज जंबल हो जाते हैं, वो पाथवेज बदल सकते हैं. तो जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करें, जितना जल्दी हम इंटरवेंशन करें, उतने जल्दी बच्चे के ब्रेन में चेंजेस आ सकती है. और जैसे वो ब्रेन में चेंजेस आएगी और वो कोप कर पाएगा अपने एकेडमिक्स के साथ, उतना ही उसका माहौल उसके लिए अच्छा होगा. उसके इंटरैक्शंस बच्चों के साथ, स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ अच्छे होंगे. उसके पढ़ाई में भी कम दिक्कत होगी और लाइफ विल बी बेटर एंड हैप्पियर फॉर हिम. He will be on the road to success much faster. So early identification, because once he's identified, he goes to special educators and they are trained how to help these children in a specific manner. Remember, tuitions and remedial education are different. Just because तुम tuition डाल रहे हो doesn't mean उसको मदद होगी. He needs special education and only specified teachers can do that. Most schools, like this school, has a resource room and it should be available, accessible, acceptable, affordable for parents so that the children get the best help. We should encourage positive school experience, promoting peer support. So all other children are involved. ऐसा नहीं कि ये एक group अलग है और वो group अलग है. हम सब साथ जाके आगे जाएंगे. Group people not against you don't group people based on the ability, but rather on the interest. Have supportive teachers. Praise the effort and not the outcomes. Give feedback. Don't talk of failures. These are the few things that will give a positive school experience. It is a knowledge of the short and long-term outcomes of self-esteem that we as educationalists and parents are presented with our greatest challenge. To teach our children not only to succeed, हम उनको खाली कामयाब नहीं बनाना चाहते, हम उनको आत्मविश्वास देना चाहते हैं. हम उनको, we want them to love themselves. They should be happy with who they are. And that is the role of us, teachers, parents, and school counselors. So हम क्या करते हैं for these children? We have to treat the specific learning disorder, of course, by getting identification, getting certificate, getting remedial education. But remember, very often, children also have associated disorders. So they may require medicines. ऐसा मन में होता है कि बच्चों को मेडिसिन देंगे तो उम्र भर देना पड़ेंगे, उनके ब्रेन को असर हो जाएगा. ये सब अफवाह है. We only give medicines when it is indicated. We give medicines when the benefits are more than the problems. And medicines can make a difference in the life of a child. वो नवीन था ना, जो 6 घंटे बाहर बैठता था, उसको ADHD या चंचलता की बीमारी थी. उसको हमने काउंसलिंग किया, उसके स्कूल से काउंसलिंग किया, पेरेंट्स की काउंसलिंग की और उसको गोली चालू की. और अगर जब हमने गोली चालू की तो उसकी चंचलता कम हो गई. चंचलता कम होने पर वो घर क्लास में तूफानी मस्ती कम करने लगा और टीचर
खफाकम होने लगी, वो क्लास में बैठने लगा, 1 साल में तो उसके घुटने साफ हो गए, all because we did intervention including medications. तो मेडिकेशन से डरना नहीं है और किसी को और को भी डराना नहीं है। मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की बहुत जरूरत रहती है, जैसे कि सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में, डिप्रेशन अच्छा करने में, एंजाइटी कम करने में। एक रोल होता है गोली का और दूसरा रोल होता है इक्वली इम्पोर्टेंट काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। शायद वो हॉस्पिटल में हो, स्कूल में हो, या आप और कोई सेंटर में बाहर जाके करें। बच्चों के मन में ऐसे आता है रहे, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसे गलतियां क्यों करती हूँ, तो ये सब समझाना बच्चों को भी बहुत जरूरी है। और ये कब होगा, जब पेरेंट्स टीचर्स समझे, तभी वो अपने बच्चे को समझाएंगे, समझ पाएंगे और उसके प्रोत्साहन कर पाएंगे। Because children have a tough time, they are failing, they're being criticized, and then because of all this they become, as we said earlier, angry, jealous about their brother. If they're compared all the time, they avoid school, run away, and they have poor self-confidence. बच्चों को तो तकलीफ है, बट पेरेंट्स को भी तकलीफ होती है। वो लोग भी बोलते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे में तो अच्छी है, थोड़ा ही ऐसा है, हो जाएगा, या उनको मालूम नहीं क्या करें, या टेंशन में आ जाते हैं, घर में झगड़ा होता है कि तुमने बराबर ट्रेनिंग नहीं की इसलिए बच्चे ऐसे हो गए। माँ बाप में झगड़े होते हैं कि तुम्हारे कारण हुआ, नहीं आपके कारण हुआ। बच्चों की माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस में भी प्रॉब्लम हो जाता है। वो चाहते हैं कि आजकल के माँ बाप तो चाहते हैं कि हर बच्चा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान सब एक में हो, आइंस्टाइन भी हो। मीन्स सब बच्चा एकदम ही बड़ा हो, ऐसे तो थोड़ी होता है। 5 fingers are never the same, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर बच्चे में कुछ अच्छा और उतना अच्छा नहीं रहता है। So learning to tone our expectations according to what the child is equally important. कभी कभी माँ बाप गिल्टी होता है, मैंने कुछ किया क्या, मेरे वजह बच्चों को ऐसा हुआ क्या, या अपने आप को दोषी मानते हैं। तो ये सब गलत है। ये जो बीमारी होती है वो एक जेनेटिक डिजीज है, ये अनुवंशिक हो सकती है। उसमें ब्रेन्स में प्रॉब्लम होते हैं, ब्रेन के केमिकल में प्रॉब्लम होते हैं, इसके लिए ये बीमारी होती है। तो अपने आप को दोषी ठहरना गलत है, बट हेल्पिंग देम इज योर जॉब एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलवेज रिमेम्बर, जब हम बच्चों को देखते हैं उसकी खामियां तो देखते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द स्ट्रेंथ्स। उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसमें हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी हॉबीज डेवलप कर सकते हैं। तो खाली वीकनेस पे मत कंसंट्रेट करो, स्ट्रेंथ्स पे भी कंसंट्रेट करो। मदद करने के लिए बच्चों की स्ट्रैटेजीज करो कि उनकी लर्निंग स्टाइल कैसे, कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडिटरी लर्नर है, तो हर एक की स्टाइल अलग लर्निंग है, तो उसकी लर्निंग स्टाइल कैसी है, हम उसको कैसे मदद करें। उनको एक स्ट्रक्चर दीजिए, उनको रीइंफोर्स करें। जब वो अच्छा करता है तो उसको प्रशंसा कीजिए, जब वो अच्छा नहीं करते तो प्रशंसा मत कीजिए, बट मारे भी मत। डू नॉट नैग and keep a desk which is clutter free so that they can be organized and work comfortably. Help each child according to his thinking. See that he eats well, sleeps well, has enough physical exercise, because these are important things for the health of the child. Screen time भी हमको कम करना है। अभी तो स्कूल ही स्क्रीन पे है, तो besides that how much time should we give for the screen? That has to be monitored. How much time for studying and playing? You should have some rules. घर में हर नियम होने चाहिए और उस नियम का पालन सबको करना है। माँ बाप को भी करना है और उनको भी करना है। क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। आप क्या चाहते हैं कि आप स्कूल से आओ, फिर स्नान कर लो, पढ़ाई करो, थोड़ा खाना पीना खाओ, खेलो, फिर पढ़ाई करो। तो ये क्लियर एक्सपेक्टेशंस है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आप 2 घंटा पढ़ाई करोगे या इतना आए तब तक पढ़ोगे। उसके लिए हम टोकन इकोनॉमी ऐसे चीज कर सकते हैं जिससे हम प्रोत्साहन दे सकते हैं।
charts banao, what is expected of you. You tick it, and if he does all that is expected in, then reward the child. ये रिवॉर्ड करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमको उसको गिफ्ट देना है या पैसा देना है. रिवॉर्ड में क्या सके, आई विल स्पेंड मोर टाइम विद यू. फैमिली आउटिंग हो सकती है, टीवी का ज्यादा टाइम, या आपको पसंद है वो मैं खाना बताती हूँ, आप उसको हक करेंगे, आप उसका जो काम है वो डिस्प्ले करेंगे. ये सब पॉजिटिव है. ऐसा नहीं पॉजिटिव मीन्स नई गेम, नया पैसा, ऐसी चीज नहीं है. और जब वो करना है और वो नहीं करता है, तो हम उसको टाइम आउट देते हैं कि जो अच्छी चीज है उसमें से आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपकी जो प्रिविलेजेस है वो ले लेंगे. तो ऐसी तरह से हम प्रिविलेजेस को कम करके रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं. इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पेशेंस. हम ये सब बात तो करते हैं, मगर पेशेंस एक बहुत अमूल्य चीज है. Having realistic expectations and having patience. आस्ते आस्ते फर्क होता है. रेमिडियल एजुकेशन भी शुरू किया तो 2 महीने में कुछ नहीं होगा, 2 साल में फर्क होगा. So having a belief that my child can do it, I will support the child and I'll have the patience to wait for slow improvement. And that is what is expected of both parents and teachers. That you keep telling the patient, encourage them, and give them time to do other things also. You study and then you can play. So you have to do both, otherwise no child can grow. जो हमने अपने बड़े बच्चे हमने किया था दूसरे बच्चे के साथ, हमारे माँ बाप ने किया हमारे साथ, वही परंपरा शायद हम ये बच्चे के साथ ना कर पाए. So you have to let go of the traditional approach. You have to do different ways which will work best for these children. So you have to think what works best for my children. For some it may be by seeing things, by doing things, or for some it may be by hearing things. So you can have audio recording, you can have displays, you can make them do things. So there are different ways a child will learn, and you'll have to try all and multisensory approaches. Most important, जो learning है वो एक खुशी की चीज होनी चाहिए, एक punishment नहीं. So it is our job as teachers, health professionals, counselors and parents to convert learning into pleasure, into fun. Give it the right support, give it the right encouragement so that this can happen. Remember, specific learning disability or learning disorder is a problem that the child is having. He is not healthy. He has many other strengths, he has many other things which you can look for and you can praise. And all these people have LD but have reached very far in life. So don't give up hope. I said we need intervention. One, I said medication. And of course, if there is any other problems, we do occupational therapy, especially for behavioral problems, motor problems. It is very important if the child cannot hear or cannot see to take appropriate steps for that and to reschedule a test according to that. So what is a testing procedure like? You will come from the school, you will carry a letter, you will carry the Aadhaar card, you will carry the last 3 years mark sheet and some school books and come to register. You can register any day, Monday to Saturday in the morning. You'll have to come to the hospital, get a card on the ground floor and come to OPD 13 on the first floor. It is okay if you do audiometry, wo kaan ka tapas or aankh ka tapas, you can do it outside and come also. If not do outside, we will do it in Nair. So once you come, you is registered, then you will be evaluated by a psychiatrist. Both the mother and the child will be evaluated, parent. We will evaluate the parents to understand what are the problems. Then we will do some tests. The test we will do is first to understand the thinking process or the IQ of the child, and then we will understand what are the problems in the study. So those are psychoeducational tests for reading, writing, and maths. We will also get a pediatrician to assess whether there are any other difficulties. So after all this is done, all the people who have seen that child sit together and discuss the case. कि भाई ये बच्चे में ये दिक्कत थी, ये strengths थे, ये अच्छा है, ये problem है.
After that, we decide what is the diagnosis and we give you a certificate. And after which you are called for counseling, where you're told what is the meaning of that certificate, what is the meaning of LD, and what you should do. And we also tell you about the treatment and the interventions required. What is intelligence? We are told it about that. It's the ability to think, and you will be given this kind of a certificate. What should you do with this certificate? Look after it very carefully. Make multiple copies. Do not give it the original to anybody. Give only copies. Do not laminate it. Put it in a folder. It's a lifelong certificate, can be used all your life. Now, with this, because the government has come up with rights for persons with disability, you can get a disability card. That card is issued, permanent card is issued after the child is 18. Before that, for learning disability, we can issue it at 10 and 14 years of age, but that is not permanent. Permanent will come at 18. So very often we may not get a disability card early. We may give you this certificate, but definitely after 18, you have to get a UDID card, a unique card, which is a identification card for children with disabilities. And it is important to get that because you get benefits because of being disabled. You can get benefits at work, benefits in colleges, benefits in education. So that is required. The earlier certificate which I showed is important also for you to get all the help in colleges, schools that is required. Eventually, what is it? We want our children to aim for the stars because when they aim for the stars, they'll at least reach till the sky. We don't want them to just follow their dreams. We want them to chase them, go after them, and reach and achieve all that. And to achieve all of that, confidence is which gives them the light. So you parents, teachers, counselors, and us mental health professionals have to instill that confidence in our children so they can achieve every dream.